Hello everyone, welcome to economics class. We have already started discussing about the central problems of an economy. So far we have discussed about the central definition of central planning, that is the meaning of central planning. Central problems of an economy refers to the problems of choice, and these problems arise because of three reasons, that is unlimited human wants, limited resources and alternative uses of resources. Let's start the topic. There are basically five central problems. First is what to produce and how much to produce, then how to produce, then for whom to produce, fuller utilization of resources and growth of resources. So far we have discussed about the first three in the previous video, that is what to produce, how to produce and for whom to produce. Today we will discuss about the fuller utilization of resources and growth of resources. Yes, the very first is fuller utilization of resources. Fuller utilization of resources refers to a situation when the actual level of output is exactly equal to the potential level of output in the economy. पोटेंशियल का मतलब होता है मैक्सिमम कैपेसिटी. सपोज करिए कि 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड है. इन 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड द मैक्सिमम ऑफ wheat that can be produced is 120 tons or 120 quintals, then it will be the potential level of output. जितना मैक्सिमम प्रोड्यूस किया जा सकता है उसको हम कहते हैं पोटेंशियल. और एक्चुअल का मतलब होता है जितना रियलिटी में प्रोड्यूस हो रहा है. अगर एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन और पोटेंशियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन इक्वल हो तो हम कहते हैं रिसोर्सेज आर फुली यूटिलाइज्ड. लेकिन अगर एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन पोटेंशियल लेवल से कम हो तब हम कहेंगे दिस इज़ अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. अभी मैंने आपको बताया कि 1 हेक्टेयर ऑफ लैंड से पोटेंशियल उसका है 120 क्विंटल्स, लेकिन अगर हम उसमें प्रोड्यूस कर रहे हैं 80 क्विंटल्स, it means actual level is less than potential level. So when actual level of output is less than the potential level of output, then it is a situation of underemployment or underutilization of resources. It is the main central problem of underdeveloped and developing countries like India, where resources are underutilized or underemployed. अब इंडिया जैसे कंट्री में या जो डेवलपिंग या अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वहाँ पर दो रीज़न्स ऐसे हैं जिनकी वजह से फुलर यूटिलाइजेशन नहीं हो रहा, मतलब अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज हो रहा है. द वेरी फर्स्ट इज़ लैक ऑफ अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी. आपको पता है कि हमारे कंट्री में अभी टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन अप्रोप्रिएट हम यूज़ नहीं कर रहे, बैकवर्ड टेक्नोलॉजी यूज़ कर रहे हैं. और दूसरा, दिस इज़ द वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज. टू बेसिक रीजन्स आर देयर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर द underutilization of resources. First is lack of appropriate technology and second is wastage of resources. So every economy has to make efforts to utilize the resources properly by adopting two ways. Number one, appropriate technology. Number two, by avoiding wastage of resources. अगर हम resources को waste ना करें या हम और साथ में appropriate technique हम use करें तो एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन जो है वो पोटेंशियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन के बराबर हो जाएगा. दिस इज़ फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. मूव टू द नेक्स्ट. दिस इज़ अबाउट द ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज. दिस इज़ अगेन अ वेरी important central problem of an economy. What is growth of resources? Growth of resources refers to the process of increasing the production capacity of existing resources by using advanced technology and by exploring new resources. अब हम यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं. अभी मैंने आपको प्रीवियस स्लाइड में बताया था कि सपोज करिए एक्चुअल लेवल ऑफ प्रोडक्शन है 80 क्विंटल्स, पोटेंशियल लेवल ऑफ प्रोडक्शन है 120 क्विंटल्स. पहले एफर्ट्स किए गए, अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी यूज़ की गई, वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज को एवॉइड किया गया और एक्चुअल और पोटेंशियल दोनों बराबर हो गए. अब इकॉनमी में रिसोर्सेज जो है फुली यूटिलाइज हैं. अगर हम यहीं पर बस कर दें तो इकॉनमी में स्टेग्नेशन आ जाएगी. स्टेग्नेशन का मतलब स्थिर हो जाएगी इकॉनमी, मींस फर्दर डेवलपमेंट नहीं होगी. तो अब हमें क्या करना पड़ेगा
पोटेंशियलिटी को बढ़ाना पड़ेगा। पहले हम 1 हेक्टेयर से मैक्सिमम 120 क्विंटल्स ऑफ वीट प्रोड्यूस कर पा रहे थे। नाउ बाय अडॉप्टिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी एंड बाय एक्सप्लोरिंग द न्यू रिसोर्सेज, द रिसोर्स बेस ऑफ द इकोनॉमी शुड बी इंक्रीज। मीन्स अब हम बात करेंगे पोटेंशियलिटी को बढ़ाने की। अब हमें मॉडर्न टेक्निक्स यूज़ करनी है, नए रिसोर्सेज एक्सप्लोर करने हैं ताकि रिसोर्स बेस बढ़े और इकोनॉमी में पोटेंशियल लेवल ऑफ आउटपुट बढ़ सके, पोटेंशियलिटी बढ़ सके। सो इट रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीजिंग the production capacity of existing resources by using advanced technology and by exploring new resources. After achieving the fuller utilization of resources, every economy has to make efforts to increase resource base by exploring untapped or unexploited resources जो अभी काफ़ी डेप्थ में है। अगर हम बात करें मिनरल्स की, तो इंडिया में मिनरल्स जो हैं वो ऊपर वाले तो हमने यूज़ कर लिए, लेकिन जो बहुत डीप हैं, बहुत नीचे गहरे दबे हुए हैं, उनको हम अभी एक्सप्लॉयट नहीं कर पा रहे, उनको अभी हम टैप नहीं कर पा रहे, मतलब उनको हम ट्रेस नहीं कर पा रहे। क्यों? क्योंकि हमारे पास मॉडर्न टेक्निक नहीं है। सो अगर हम मॉडर्नाइज टेक्नोलॉजी यूज़ करें या नए रिसोर्सेज को एक्सप्लोर करें तो क्या होगा, हमारा रिसोर्स बेस भी बढ़ेगा और इकॉनमी की पोटेंशियलिटी भी बढ़ेगी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले आता फुलर यूटिलाइजेशन। आफ्टर अचीविंग फुलर यूटिलाइजेशन, नाउ द इकॉनमी विल हैव टू मेक एफर्ट्स टू इंक्रीज रिसोर्स बेस बाय यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी as well as by exploring the new resources. With this, this topic is over. Now, what's about the economic problems and their solution? अब हमने सारी economic problems के बारे में पढ़ लिया। 5 economic problems हमने basically discuss की। What to produce and how much to produce, then how to produce, then for whom to produce, fuller utilization और growth of resources को ये मैक्रो लेवल पर स्टडी होती है, इनको हम अभी साइड पे छोड़ रहे हैं। हम इन तीनों के बारे में कर रहे हैं। दीज आर द इकोनॉमिक डिसीजन। अब 3 तरह की इकोनॉमीज़ के बारे में हमने पढ़ा था, सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, सोशलिस्टिक सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी। इन तीनों के बारे में हम पहले डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मार्केट इकोनॉमी इज एन इकोनॉमी where the resources are owned, managed and controlled by the individuals. That's why all the major economic decisions of what to produce, how much to produce, how to produce and for whom to produce will be taken by the individuals for getting maximum profit or for the objective of maximization of profit. अब यहाँ पर individuals या capitalist क्या करेंगे, ऐसी टेक्निक को यूज़ करेंगे जिससे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम हो, ऐसी चीज़ों को प्रोड्यूस करेंगे जिनकी डिमांड ज़्यादा हो और प्रॉफिट ऑफ द प्रोड्यूसर्स इंक्रीज़ हो सके। सो दिस इज़ अबाउट द मार्केट इकॉनमी। सेंट्रली प्लान्ड और सोशलिस्टिक इकॉनमी होती है वेयर द मेन मोटिव इज़ social welfare because the resources are owned, managed and controlled by the government. So all the economic decisions will be taken by the government with the objective of social welfare. Now in mixed economy is an economy where there is a coexistence of government sector, that is the public sector, as well as the private sector. That's why the economic decisions are taken by the private sector, private individuals for maximization of profit and by the government for the maximization of social welfare. So this is all about the solution of central problems in different economies. Move to the next topic. This is opportunity cost. This is very important. लेकिन अभी इस टॉपिक के बारे में इतना श्योर नहीं है कि ये आपके सिलेबस में रहेगा या नहीं, क्योंकि आगे जब हम अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का टॉपिक डिस्कस करते थे या मार्जिनल अपॉर्चुनिटी का कॉस्ट का करते थे तो विद द हेल्प ऑफ पीपीसी करते थे, और इस बार से आपका प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का टॉपिक डिलीट हो गया। लेकिन इस टॉपिक के बारे में हम श्योर नहीं है तो मैं आपको करा रही हूँ विदाउट पीपीसी। चलिए, व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? नाम से क्लियर हो रहा है, हम एक अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हैं तो हमें कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है। दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सो व्हाट इज़ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आर द बेनिफिट्स दैट एन इंडिविजुअल और द इन्वेस्टर और द बिजनेस मिसेस आउट ऑन व्हेन दे चूज़ वन अल्टरनेटिव ओवर अनदर। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, ये लाइन आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है।
अपॉर्चुनिटी कॉस्ट, आपको लर्न भी यही लाइन करनी है. अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव foregone if a certain amount of land, labor and capital is used to build a factory, then the opportunity cost might be the houses which these resources could have produced. यहाँ पर आपको पता लग रहा है कि अगर हम एक ज़मीन पर कोई फैक्ट्री बनाने जा रहे हैं तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या रहेगी, जिसमें हम उस ज़मीन पर घर बना सकते थे, लेकिन अगर हम फैक्ट्री बना रहे हैं तो हमें हाउसेस को सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. आपके पास 100 रुपये हैं, आप 100 रुपये से एक बुक भी खरीद सकते हो और एक मूवी की टिकट भी खरीद सकते हो. अगर आप मूवी की टिकट खरीद रहे हो तो आपको बुक का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. दिस इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. सो व्हाट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेफर्स टू द कॉस्ट बॉन्ड because of taking benefit of one opportunity. This is the cost availing an opportunity. एक अपॉर्चुनिटी अगर आप ले रहे हो तो दूसरी का आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि एक ग्रेजुएट है, एक ग्रेजुएट लड़का है या एक ग्रेजुएट पर्सन है हमारे पास, उसको जॉब ऑफ़र हुई, उसने जॉब के लिए अप्लाई किया, उसको एमएम कॉलेज में जॉब मिल रही है, पियोन की जॉब के लिए उसने अप्लाई किया, उसको वहाँ पर जॉब के लिए मिल रहे हैं 10,000 रुपीज़. उसे डीएवी में अप्लाई किया, डीएवी में उसको मिल रहा है 15,000. और उससे एक और स्कूल में डैफोडिल में अगर उसने अप्लाई किया तो उसको मिल रहे हैं 8,000. अब बड़ी सिंपल सी बात है, बीइंग अ रैशनल पर्सन ही विल मूव टू डीएवी, क्योंकि उसको यहाँ 15,000 रुपये मिल रहे हैं. डैफोडिल का उसने बिल्कुल ही छोड़ दिया, क्योंकि उसको वहाँ पर 8 या 9,000 रुपये मिल रहे थे, उसने छोड़ दिया. अब उसके पास था कि डीएवी में उसको 15 मिल रहे हैं और कॉलेज में एमएम कॉलेज में उसको 10,000 मिल रहे हैं. अगर वो डीएवी में जॉब करता है, ही इज़ अवेलिंग द अपॉर्चुनिटी ऑफ डूइंग जॉब इन डीएवी. और नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है? एमएम कॉलेज. एमएम कॉलेज में उसको मिल रहे थे 10,000 रुपये. सो व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ डूइंग जॉब इन डीएवी? दिस इज़ 10,000. सो how can we define opportunity cost? Opportunity cost refers to the value of a factor in its next best alternative use. आपने देखा, डैफोडिल का उसने छोड़ दिया क्योंकि ये बेस्ट अल्टरनेटिव नहीं था. बेस्ट उसने चूज़ किया डीएवी क्योंकि सबसे ज़्यादा सैलरी मिल रही थी. नेक्स्ट बेस्ट कौन सा है? दिस इज़ वर्किंग इन एमएम कॉलेज. यहाँ से उसको मिल रहे थे 10,000 रुपये. सो द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ डूइंग job in DAV school will be rupees 10,000. So this is the concept of opportunity. Next topic. This is about an example. Suppose you have rupees 20,000 and you want to purchase a laptop and a LCD TV. आप दोनों ही खरीदना चाहते हो, but with only rupees 20,000 in hand, you cannot buy both. If you decide to buy the laptop, then the opportunity cost of choosing the laptop is the cost of the foregone satisfaction from the LCD TV and vice versa. दोनों में से क्योंकि आपको एक करना है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस तो यहाँ है ही है. आपने चूज़ किया कि लैपटॉप लेना है, तो आपको दूसरा क्या नहीं मिल रहा? आपको LCD TV नहीं मिल रहा. दिस इज़ द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. देन दिस डेमोन्स्ट्रेट अ फंडामेंटल इकोनॉमिक कंडीशन दैट एज आर रिसोर्सेज आर लिमिटेड. क्योंकि ये सेंट्रल प्रॉब्लम की पूरी कहानी कहाँ घूम रही है? रिसोर्सेज आर लिमिटेड, ह्यूमन वांट्स आर अनलिमिटेड एंड रिसोर्सेज कैन बी पुट इनटू अल्टरनेटिव यूजेस. सो वी आर ऑलवेज फोर्स्ड टू मेक चॉइस between alternate commodities. This amount of other goods and services that must be sacrificed to obtain more of any one good is called the opportunity cost of that good. Since by definition they are unseen, opportunity cost can be easily overlooked if one is not careful. कई बार हम ध्यान ही नहीं देते और जो चीज़ हमें चाहिए होती है हम वो ले लेते हैं बिना ये सोचे कि उसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है. मतलब अगर मैं एक अपॉर्चुनिटी अवेल कर रही हूँ तो मुझे उसके लिए कितना सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, कई बार हम इसकी तरफ ध्यान देते ही नहीं हैं. दिस इज़ अबाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. नाउ सेकेंड कॉन्सेप्ट, दिस इज़ मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट. बच्चे, मार्जिनल का मतलब होता है चेंज, मार्जिनल का मतलब होता है एडिशन. जैसे ही हम किसी कमोडिटी का एक एडिशनल यूनिट खरीदते हैं तो हमें दूसरी कमोडिटी का कुछ अमाउंट सेक्रीफाइस करना पड़ता है. जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं, मेरे पास 100 रुपीज़ है और टोटल मनी मेरे पास 100 रुपीज़ है और आइसक्रीम का रेट है ₹25 और चॉकलेट का रेट है
आइसक्रीम का रेट है ₹25 और चॉकलेट का रेट है ₹50। अब यहाँ पर कुछ ऑप्शन है, ध्यान से देखो। मैं उस ₹100 से या तो 2 चॉकलेट और 0 आइसक्रीम खरीद सकती हूँ, या मैं उसे 0 चॉकलेट 4 आइसक्रीम खरीद सकती हूँ, या मैं उससे 2 चॉकलेट 1 आइसक्रीम खरीद सकती हूँ। 2 आइसक्रीम और 1 चॉकलेट खरीद सकती हूँ। मैं फिर से इसको लिख रही हूँ, ध्यान से देखो इसको। विद ₹100, with ₹100, having when when price of ice cream is ₹25 and price of chocolate is ₹50, मैं क्या खरीद सकती हूँ? मैं खरीद सकती हूँ 4 आइसक्रीम 0 चॉकलेट, 0 आइसक्रीम 2 चॉकलेट्स, या 2 चॉकलेट्स और 1 आइसक्रीम। टू आइसक्रीम एंड 1 चॉकलेट, ये मैं खरीद सकती हूँ। ठीक है, अब अगर आप ध्यान से देखो, जैसे जैसे मैं चॉकलेट ज़्यादा खरीदती जा रही हूँ, मुझे आइसक्रीम का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। शुरू में 0 चॉकलेट 4 आइसक्रीम, 1 चॉकलेट 2 आइसक्रीम, 2 चॉकलेट्स 0 आइसक्रीम। मतलब अगर मुझे चॉकलेट्स ज़्यादा खरीदनी है तो मुझे आइसक्रीम का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। क्यों? बिकॉज आई हैव लिमिटेड ₹100, ₹100 है। अगर मुझे चॉकलेट ज़्यादा खरीदनी है तो आइसक्रीम का मुझे सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। यहाँ से मैं क्या निकाल रही हूँ? विथ एवरी एडिशनल यूनिट ऑफ chocolate, the consumer will have to sacrifice ice cream. ये कहलाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब इसको हम फिर ध्यान से समझें, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को फिर से ध्यान से समझिए। चलिए, व्हाट इज मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? Marginal opportunity cost refers to the number of units of a commodity sacrificed to gain one additional unit of another commodity. अगर हम चॉकलेट का एडिशनल यूनिट खरीदना चाहते हैं तो हमें आइसक्रीम के कितने यूनिट सेक्रीफाइस करने पड़ेंगे, ये कहलाता है मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। बिकॉज बाय डेफिनेशन दे आर अनसीन, opportunity cost can be easily overlooked if one is not careful. In numerical terms, marginal opportunity cost is the ratio of the बच्चे यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, चलिए हम इसको आगे कर लेते हैं। नेक्स्ट स्लाइड पर देखें। मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द रेशियो बिटवीन लॉस ऑफ आउटपुट ऑफ गुड वाई बाय गेन ऑफ आउटपुट ऑफ गुड एक्स। मतलब कितना सेक्रीफाइस हमें करना पड़ रहा है, दिस इज लॉस बाय गेन। MOC इज इक्वल टू चेंज इन आउटपुट ऑफ गुड वाई बाय चेंज इन आउटपुट ऑफ गुड एक्स, दैट इज लॉस बाय गेन। कितना हमने सेक्रीफाइस किया और कितना हमें मिला। सपोज फॉर अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, production of one consumer good requires the company to sacrifice production of 4 capital goods. एक गुड कंज्यूम करने के लिए 4 का सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है। Then this 4 capital goods will be the marginal opportunity cost of producing an additional consumer good. क्योंकि आपने देखा ऊपर हमने लेना लॉस, नीचे लेना गेन। 4 यूनिट्स 4 गुड्स का सेक्रीफाइस करना पड़ा। क्यों? क्योंकि हम एक लेना चाह रहे थे। So MOC will be loss by gain. 4 by 1, this is equal to 4. So this is marginal opportunity cost. It can be explained with the help of a table. हमारे पास 3 कॉलम है। पहला है प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स, प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। MRT मार्जिनल रेट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन और मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट वन एंड द सेम थिंग। स्टार्टिंग में देखिए, production of good x 0, production of good y 14. It means all the resources are used for the production of good y. What is MRT? यहाँ हम पहले बिल्कुल स्टार्टिंग में हम नहीं निकाल पाएंगे क्योंकि हमें चेंज पता नहीं लग रहा। सेकेंड में देखिए, इफ़ वी वांट टू प्रोड्यूस 1 यूनिट ऑफ x,
we will have to sacrifice some amount of good by. Formula क्या रहेगा? Loss by gain. What is loss? This is 14 से 13 हुआ, 1/1, this is equal to 1. नेक्स्ट में देखिए, 1 एडिशनल यूनिट गुड एक्स का प्रोड्यूस करना था, सेक्रीफाइस करना पड़ा 2. 2/1, दिस इज इक्वल टू 2. फिर एक एडिशनल यूनिट एक्स का फिर प्रोड्यूस करना था, सेक्रीफाइस हुआ 3 यूनिट्स का, मीन्स 3/1, दिस इज इक्वल टू 3. एक और एडिशनल एक्स का प्रोड्यूस करना था, सेक्रीफाइस किया 4 यूनिट्स, आया 4/1, दिस इज इक्वल टू 4. सो हमने यहाँ से क्या निकाला? For the production of every unit of good, for the production of every additional unit of good X, the producer will have to sacrifice more than before. More than before. पहले के लिए उसने 1 का सेक्रीफाइस किया, दूसरे के लिए 2 का किया, तीसरे के लिए 3 का किया, चौथे के लिए 4 का किया. Means the producer will have to sacrifice more than before. For every additional unit of good X, the producer will have to sacrifice more and more units of good Y. So what we conclude that MRT or MOC is increasing in nature. लगातार बढ़ता जा रहा है ये 1, 2, 3, 4. इसका कोई रीज़न है? Let's discuss about the reason. Marginal opportunity cost or marginal rate of transformation is increasing in nature. Now we will discuss why. Marginal rate of transformation or marginal opportunity cost is always increasing in nature because resources are use specific. Use specific का मतलब होता है that they are not equally efficient for the production of both the goods. That is, for the production of an additional unit of good, the producer will have to sacrifice more and more units of another good. अब इसमें एक फिर से एग्जाम्पल समझिए. देखो बेटा, सपोज करो कि मेरे पास एक टुकड़ा है ज़मीन का, एक लैंड, पीस ऑफ लैंड है मेरे पास. उसके एक साइड कैनाल है, मतलब वहाँ इरिगेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी हैं, और उसके दूसरे कॉर्नर पर नहीं है. उसका जो एरिया, जो साइड पानी के पास है, वो राइस प्रोडक्शन के लिए बहुत ज़्यादा सुटेबल है, और जो सोर्स ऑफ वाटर से दूर है वो वीट के प्रोडक्शन के लिए बहुत अच्छा है. सपोज़ करिए कि मैं उस पर पहले वीट ही प्रोड्यूस कर रही थी, सारे के सारे लैंड पर मैं वीट प्रोड्यूस कर रही थी, और मेरा राइस का प्रोडक्शन था 0. अब मुझे राइस का प्रोडक्शन करना था. मैंने 10 क्विंटल्स राइस प्रोड्यूस किए. मैं किस तरफ से शुरू करूँगी? जिस तरफ वाटर बॉडी है, मतलब पानी का सोर्स बहुत अच्छा है. मैंने वहाँ से थोड़े से टुकड़े को राइस प्रोडक्शन के ले लिया. क्योंकि मैंने वहाँ राइस प्रोडक्शन शुरू किया, तो उस जगह पर अब मैं वीट नहीं प्रोड्यूस कर पाऊँगी. इसका मतलब मेरे टोटल प्रोडक्शन ऑफ वीट जो है वो पहले से कम हो जाएगा. यहाँ से मैंने निकाला, इन ऑर्डर टू प्रोड्यूस सम अमाउंट ऑफ राइस, द प्रोड्यूसर विल हैव टू सेक्रीफाइस सम अमाउंट ऑफ वीट. अब मुझे राइस का प्रोडक्शन बेनिफिशियल लगा. मैंने राइस का प्रोडक्शन और बढ़ाना शुरू कर दिया. अभी भी मैं वाटर बॉडी वाली साइड से ही आगे चल रही हूँ. फिर मुझे वीट का प्रोडक्शन कम करना पड़ा. फिर धीरे धीरे, क्योंकि अब मैं राइस का प्रोडक्शन बढ़ाती जा रही हूँ, तो अब मैं धीरे धीरे उस लैंड की तरफ अप्रोच कर रही हूँ जो राइस के लिए कम सुटेबल था और वीट के लिए ज़्यादा सुटेबल था. इसका मतलब फॉर प्रोडक्शन ऑफ सेम अमाउंट ऑफ राइस, now the farmer will have to use more and more piece of land that was suitable for wheat. It means for the fixed amount of rice, the producer will have to sacrifice more and more amount of wheat. क्यों? क्योंकि अब धीरे धीरे वो उस ज़मीन को भी यूज़ कर रहा है राइस के प्रोडक्शन के लिए, जो राइस के लिए बहुत सुटेबल नहीं है, वीट के लिए ज़्यादा सुटेबल है. इसलिए अब उसको, सपोज़ करें हम 10 क्विंटल के लिए, उसको पहले से ज़्यादा ज़मीन की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी वजह से वहाँ पर उसका रिटर्न तो उसको 10 क्विंटल्स ऑफ राइस ही मिलेगा, लेकिन उसको वीट का सेक्रीफाइस पहले से ज़्यादा करना पड़ेगा. व्हाट इज़ द रीज़न? रीज़न इज़ दैट resources are use specific, means resources are not equally efficient for the production of both the goods. That's why
marginal opportunity cost or marginal rate of transformation is increasing in nature. So with this your chapter is over. Now I am giving you assignments. मैंने आपको पिछले वीडियो में भी असाइनमेंट भेजा था और अभी भेज रही हूँ. You are required to complete these questions in your notebook, and if you have any doubt you can send me your doubt either on app or in group or to me personally. So dear students, stay home, stay safe, do your work properly. Goodbye dear students. Good.